Start. Good evening, students. Today we will discuss about our chapter units and measurement. In previous video I have told you about the MLT dimensions, that is MLT form of any physical quantity that we used in our physics. So in previous video I have told you that about force we can write like this, MLT minus 2. After that, if I take the example of pressure is force by area, and we can derive the function like this. Area is L into L here, so it would be ml square T minus 2. And I have solved many other examples to do the MLT form. और इसके रिगार्डिंग आपको IIT और JEE में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन जो है आपको रिगार्डिंग MLT की फॉर्म में जरूर मिलेगा ही मिलेगा. So after that I will say इसके बाद एक टॉपिक हमारे पास आता है, that is some physical quantities are dimensionless, that is they have no dimension. For example, if I said refractive index, you have all studied in the class 10 that is refractive index is the ratio of speed of light in vacuum over speed of a light in medium. अगर आपको याद हो, speed of light in vacuum over speed of light in medium. So basically they both are speed, and you all know that refractive index has no units, so therefore it does not have any dimension, so therefore it is a dimensionless quantity. And there are many physical quantity which are dimensionless. If like I say refractive index is one of them, and we can say सब नहीं surface tension नहीं आपका strain is the one of the example. And mechanical advantage आपको नहीं होता. mechanical advantage ICSE बोर्ड में होता है. basically mechanical advantage is force over load, and load and force both have same units, so they are dimensionless quantities. So MLT की फॉर्म में जो मैंने आपको बोला कि इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन जो है आपके नीट में, जेई में, हर जगह पर ये क्वेश्चन मिलेगा. सो लेट अस डिस्कस मोर एग्जांपल्स ऑफ MLT फॉर्म. For example, let me take another example. For example, resistance. You all have studied the topic of resistance in your exam. That is, resistance is nothing V by I. इससे पहले आपको ये चीजें क्लियर करनी होंगी that there is no there are 7 physical quantities which are our fundamental units. So if I said voltage and current is the fundamental unit, we can find this form, but voltage is not the fundamental unit. So V by I, but we know V is equals to W by Q. Potential difference is work done per unit charge, so we can say that V is W by Q into I. Now work done का MLT फॉर्म हमें पता है. आई थिंक हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में किया था, क्योंकि वर्क डन का निकालना भी इतना मुश्किल नहीं है. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि फोर्स का जरूर याद रखना, दैट इज MLT minus 2, और डिस्प्लेसमेंट L में ही होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा ml square T minus 2. और Q into I. अब चार्ज भी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, यही 10th क्लास से Q is equals to IT है ना. तो यहां से क्या हो जाएगा, I, so it would be ml square T minus 2 I square n T. तो I का हमें पता है फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, so it would be A square and it is T की पावर minus 2 and minus 1. So in the end we will get ml square T minus 3 and A
सो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस का अगर आपसे कोई डायमेंशन एनालिसिस पूछता है तो वो इस रिगार्डिंग आएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम कुछ नीट और उसके कॉम्पिटिटिव के आपके जेई के क्वेश्चन जो उठाएंगे और उसे देखेंगे कि कैसा जो एग्जाम का पैटर्न है वो रहता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज आपकी एनसीईआरटी में भी है और बहुत की बार हम +1 में बच्चों को जरूर डालते हैं ये क्वेश्चन। दैट इज आपको टॉपिक आपका डायमेंशन एनालिसिस ही है, बट इसका एक सब पार्ट है, दैट इज रिड्यूसिंग द डायमेंशन एनालिसिस। किसी भी चीज को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, दैट इज आई एम राइटिंग द क्वेश्चन दैट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to length and acceleration, short form लिख रहा हूँ, acceleration due to gravity, हम लेते हैं velocity। और उसने बोला reduce the, आप कहीं से बोलेगा find the dimension of time period रिलेशन बिटवीन। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है टीचर्स का, बहुत से टीचर्स आप कहीं पर भी जाएंगे ये क्वेश्चन करवाया ही जाता है इन केस ऑफ प्लस। तो उसने हमें यहाँ से बोला कि टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेलोसिटी। उसने आपको बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड, मतलब डायमेंशन जो निकालना है हमें वो बेसिकली मुझे इन तीनों के रिस्पेक्ट में निकालना और इनका एक रिलेशन मुझे जो है सॉल्व करके उनको बताना है। सो ये क्वेश्चन जो है तो हम कैन राइट इट लाइक दिस, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी। सो हम यहाँ पर बेसिकली हमें अगर रिलेशन बताना है डायमेंशंस का तो हम क्या करेंगे, हम इनकी एक पावर लेते हैं जिससे हमें इनका रिलेशन जो निकालना पड़ेगा एमएलपी की फॉर्म में बेसिकली। सो हम लिखेंगे लेंथ को हमने लिया लेंथ की पावर a, आप x y z भी ले सकते हैं, और वेलोसिटी की पावर c। तो मैंने इसे बोला कि अगर ये सारे प्रोपोर्शनल हैं तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, g की पावर b एंड v की पावर c। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और k दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसका कोई भी जो डायमेंशन है वो नहीं होता, तो क्योंकि हमने खुद लगाया है, दैट इज l की पावर a, g की पावर c एंड v की पावर c। अब हमें l, g और v का क्या है डायमेंशन हमें पता है। l क्या है, l इज लेंथ, l तो अगर मैं तीनों के यहाँ लेता हूँ लेंथ का तो l ही रहेगा। g बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का अगर आप ध्यान से समझो, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी का डेल्टा से। वेलोसिटी का होता है lt-1, टाइम का t रहेगा और ये क्या हो जाएगा lt-2। हमने पहले भी किया है, आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के यूनिट से भी जा सकते हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को हम किस में लिखते हैं, l को s को हम लिखेंगे टाइम, दैट इज lt-2। तो लेंथ g की जगह पे आ जाएगा lt-2 एंड वेलोसिटी का आपको पता ही है lt-1। c लग रहा है बट इट इज ओके। सो हमें यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या पता लग जाएगा, इनका एक रिलेशन पता चल जाएगा। लेकिन हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो आप वीडियो को स्टॉप करके ये क्वेश्चन जो है आप लिख सकते हैं। सो ऊपर वाला जो पार्ट है इसे रब कर देता हूँ।
सो बेसिकली जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू के इंटू एल की जगह पे एल ही रहेगा और जी की जगह पे आ जाएगा एल टी माइनस टू रेज टू पावर बी एंड एल टी माइनस वन की पावर सी। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ध्यान से इसे देखना बच्चों प्लीज। एल की पावर ए, यहाँ से क्या होगा एल की पावर बी, टी की पावर माइनस टू बी, एल की पावर सी और टाइम पीरियड बी पावर वन है तो माइनस सी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एल की पावर आएगी ए प्लस बी प्लस सी, ओके, एंड टाइम पीरियड इज माइनस टू बी माइनस सी। और यहाँ से टाइम पीरियड के लिए क्या एनालिसिस होगा, टाइम का टाइम ही रहेगा बट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एन की पावर 0, एल की पावर 0 एंड टी की पावर 1। सॉरी देयर इज अ मिस्टेक थी यहाँ पर, वेलोसिटी नहीं मास था। सो एन की जगह पे एम ही रहेगा, चेंज हो जाएगा। एम की पावर सी। तो यहाँ से हम बच्चों निकाल सकते हैं रिलेशन ए बी और सी की वैल्यू। अगर हम यहाँ से सारी okay in the last video the relation is time period of the oscillation and that is directly proportional to length, acceleration due to gravity and mass। तो हम इससे तीन कोएफिशिएंट से सॉल्व करेंगे, that is time is directly proportional to length, acceleration due to gravity, क्योंकि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, time is directly proportional to length, ग्रेविटी एंड मास। और मैंने तीनों को कंबाइन करके लिख लिया और यहाँ से मैं प्रोपोर्शन का साइन हटा के के लिख लेता हूँ। के का कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि के क्या है बेटे, कांस्टेंट है जो कि हमने अपनी तरफ से ही लगाया है। तो एल की जो डायमेंशंस होती हैं वो एल ही होती हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की मैंने यहाँ लिख दी है बच्चों, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मीटर के लिए लेंथ आएगा और सेकंड्स किसका होता है, टाइम का होगा, तो एल टी माइनस टू यहाँ पर आ जाएगा। मास के लिए तो हम एम ही यूज करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, तो यहाँ से एल रेज टू पावर ए, इसको एक्सपैंड करोगे तो एल की पावर बी एंड टी की पावर माइनस टू बी एंड एन की पावर सी। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स को। तो जब आप कंपेयर करोगे तो सी की पावर इक्वल्स टू 0 आएगा और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 आएगा एंड t रेज टू पावर 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2b। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं b की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी माइनस हाफ, है ना, और c तो 0 ही आ गया। और a यहाँ से आप कितना निकाल सकते हो, a इज हाफ। सो हमारे पास तीनों जो वैल्यूज हैं बच्चों वो आ गई हैं, दैट इज a इज हाफ, b इज माइनस हाफ एंड c इज 0। तो हमें इसको अपनी मेन जो इक्वेशन है दैट इज इस इक्वेशन में पुट करना है। तो जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे बच्चों तो इट वुड बी लाइक दिस, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू एल, ए की पावर हाफ आई है और जी की पावर माइनस हाफ आई है और यहाँ पर मैं के लिख रहा हूँ और टी की पावर 0। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 ही होता है, सो उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से क्या आएगा, एल की पावर हाफ और बच्चे को मैं इसे नीचे लेके जाऊंगा तो जी की पावर हाफ, और इसको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ अंडर द रूट एल बाय जी। तो ये टाइम पीरियड का एक बहुत फेमस जो है बच्चों एक रिलेशन है, जो कि हम टाइम पीरियड्स ऑफ आपका ऑसिलेशन एंड वेव में इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 15। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। ये बहुत बार आपके स्कूल एग्जाम में मिलेगा, नॉट इन दैट इज जेई। जेई के लिए हम जो क्वेश्चन उठाएंगे वो ये क्वेश्चन है, दैट इज आप इसको स्टॉप करके इसको रिलेशन को लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू, और हाँ एक रिलेशन ये भी है,
√L/g। ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू थी, तो k की जगह पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कि हम 2 पाई यूज करेंगे, we will use that value. So like this, let us take the another example of this dimension, reducing the dimensions. So let us consider the second. मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे कि फाइंड द एक्सप्रेशन, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन स्फेरिकल बॉडी आर इन फ्लूइड of viscosity eta and speed v. यहाँ पर there is a question, मुझे फोर्स का एक्सप्रेशन बताना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी। ये नहीं कि मुझे फोर्स का तो वैसे पता ही है, दैट इज mlt - 2, जो वो नहीं बताना, मुझे फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन अ स्फेरिकल बॉडी दैट इज r इन फील्ड ऑफ विस्कोसिटी eta। आई थिंक आपको यहाँ पर r पता होगा, वेलोसिटी का यूनिट पता होगा, लेकिन विस्कोसिटी जो है आपके लिए नया डायमेंशन है। विस्कोसिटी इज नथिंग, इट इज द विस्कोसिटी हम बोलते हैं दैट इज व्हेन टू लेयर्स रब ईच अदर इन अ फ्लूइड। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने फ्रिक्शन पढ़ा है, सॉलिड के केस में हम उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, और लेकिन लिक्विड्स के केस में उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। इसका आप इसको लिटरल मीनिंग मान सकते हैं, किसी भी चीज में कितना गाढ़ापन की अगर हम बात करें कि कोई चीज कितनी गाढ़ी हो सकती है, दैट इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी। सो मैं आपको विस्कोसिटी का जो रेडियस का आपको पता ही है, दैट इज L, डिस्टेंस है तो लेंथ में होगा, है ना। सो और वेलोसिटी का आपको पता है lt - 1 eta, दैट इज, इसका मैं रिलेशन आपको बता देता हूं, दैट मींस ये होगा t - 1। तो आपने हमें जैसे पहले क्वेश्चन किया, आपको इसको भी वैसे ही करना है, जैसे कि आप लिखोगे इसको, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर, और सॉरी रेडियस है, रेडियस की पावर a और eta की पावर b और स्पीड वेलोसिटी की पावर c। आपको मैंने r का बता दिया, eta का बता दिया और वेलोसिटी का बता दिया। आपको यहाँ पर ये वैल्यूज को पुट करना है और abc को निकालना है। सो स्टॉप करिए वीडियो को 2 मिनट के लिए और ट्राई करिए जब तक मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ओके, सो आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो लेट अस फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर जो है दैट इज रेडियस। सो रेडियस का हमें पता लग गया। अब मैं पहले कांस्टेंट बता देता हूँ बच्चे। रेडियस का लेंथ आएगा l की पावर a, eta दैट इज दिस, वेलोसिटी आपको पता ही है। सो यहाँ से फोर्स का हमें पता है बच्चों mlt - 2। सो पहले मास का ही लिख लेते हैं। मास एक ही है, दैट इज b, लेंथ a माइनस b प्लस c एंड टाइम पीरियड इज माइनस b माइनस c। सो ये हमारे पास mlt का फॉर्म आ गया बच्चों। सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो पहले हम आई थिंक b निकाल सकते हैं, क्योंकि m का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और l का कोफिशिएंट भी 1 है, t का कोफिशिएंट -2 है। सो आई थिंक इजी होगा ये आप लोगों के लिए। तो देयरफॉर हम ऐसे बोल सकते हैं ना, b is 1 on comparing the coefficients, b is 1 है ना। सो b 1 आ गया, सो यहाँ से c भी निकल सकता है ना। माइनस b माइनस c इज इक्वल्स टू -2 और b कितना है 1 -2। सो c होगा आपका यहाँ से c would be minus c would be -2 plus 1 and c is also 1। c भी 1 आया। अब रह गया आपका a। सो a के लिए हमें l को कंपेयर करना पड़ेगा, दैट इज 1 is equals to a minus b plus c
ए निकालना है मुझे, बी 1 आया था और सी भी 1 आया था, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। और बहुत अच्छा आंसर, दैट इज सारे ही ए बी सी तीनों ही क्या है बच्चों 1 आए। तो जब हम फाइनल रिलेशन अपना निकालेंगे तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज यहाँ देते हैं, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू आर के इंटू आर की पावर 1 ईटा की पावर 1 एंड वेलोसिटी की पावर 1। और एक बहुत फेमस रिलेशन है, दैट इज ईटा आर, दैट इज द रिलेशन ऑफ फोर्स बिटवीन क्रिटिकल वेलोसिटी को हम रिलेशन बोलते हैं बच्चों यहाँ पर ईटा आर। तो ये इसका फाइनल जो है बच्चों आंसर है, दैट इज ईटा आर वी। आई होप आपको डिड्यूसिंग दी फिजिकल क्वांटिटी समझ आ रहा होगा। आपको आई थिंक ईटा के लिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब जैसे जैसे आप फिजिक्स में इन्वॉल्व होते रहोगे बच्चों, आपको नई नई टर्म्स पता लगती रहेंगे, खुद पता लगा लो कि ईटा का कैसे आ सकता है। सो लेट अस डू अनदर क्वेश्चन, दैट इज जो कि मुझे लगता है कि आपका उसमें आया भी हुआ है एग्जाम में। सो आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन। यहाँ से आपको इसको ट्राई करना है। क्वेश्चन ये है, दैट इज फिर से मैं क्रिटिकल वेलोसिटी का ही ले रहा हूँ क्वेश्चन आपको। ये आपका नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन इज देयर दैट फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन बताना है। तो उसने आपको रिलेशन दे दिया कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट इज ईटा, रो एंड आर। ईटा मैंने आपको पिछले वीडियो में ही पिछले क्वेश्चन में ही करवाया। रो आपको पता है क्या होता है, दैट इज डेंसिटी, आर इज द रेडियस, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नॉट विस्कोसिटी, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड रो इज द डेंसिटी। तो उसने यहाँ से उसने आपको क्वेश्चन ये दिया है बच्चों ए, और ये नीट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज। और उसने आपको ऑप्शन दिए, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। बेसिकली मुझे एबीसी की वैल्यू जो है बच्चों वो बतानी है, और जो 1 -1 -1 -1 -1 -1 एंड दैट इज 1 1 1। आपको ए बी सी को जैसे हमने पहले किया उस तरीके से सॉल्व करना है। सो आप वीडियो को स्टॉप करके आप कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। सो आफ्टर 2 मिनट्स आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा, है ना। सो हम इस क्वेश्चन को अब देखते हैं कि ए बी सी की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले अगर जिन बच्चों का हो चुका है क्वेश्चन तो आई विल ट्राई कि मैं उनको बता दूं आंसर जो है आपका, दैट इज ए। आंसर ए है, बट कैसे वो हमें निकालना है वो हम देखेंगे। जैसे कि क्रिटिकल वेलोसिटी का मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, दैट इज ml-1 and t-1। डेंसिटी रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, पढ़ा है सबने, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मास तो m से ही रहेगा, वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच, और L इंटू बी इंटू एच का मतलब है सारी चीजें मीटर्स में ही कैलकुलेट हो रही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड सेकंड थर्ड वन इज रेडियस, तो वो लेंथ में ही आएगा। तो आई थिंक हमारा क्वेश्चन जो जिनको ये डायमेंशन निकालनी आ गई उनका जो क्वेश्चन है वो बच्चों वो हो गया। सो आप इसे लिख सकते हैं, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू m1 t-1। अभी कर लेते हैं की पावर ए। आप ऑप्शन बता चुके हैं ना, तो इसको क्लिक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ कर लेते हैं, यहाँ जाएगा ये। सो इट इज छोटा लिख लेंगे, दैट इज ईटा इज ml-1 t-1 की पावर ए पावर सी।
तो यहाँ से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे n की पावर a माइनस a t माइनस a l की पावर c। और वेलोसिटी का यूनिट तो आपको पता ही है ना, एल टी माइनस वन। तो यहाँ से हुआ m और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 0। m नहीं है तो m की पावर 0, m की पावर a प्लस b l माइनस a माइनस 3b एंड c b t। टाइम पीरियड अभी अकेला ही होगा माइनस वन। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग अगर यहाँ तक एक बार मैं चेक करूँगा तो ठीक भी आ रहा है या नहीं। x plus y and तो यहाँ से आप इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आपका जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनना चाहिए, t की सबसे पहले आप t वाला लिखिए क्योंकि t वाला सबसे इजी है। ये आपका बना भी गया और उसके बाद m का यहाँ पर नहीं था मास तो हमने m की पावर 0 लिख लिया। सो इट वुड बी a प्लस b इज इक्वल टू 0, a इज 1 सो b इज -1। अब L वाला लिखते हैं माइनस a माइनस 3b प्लस c। L का यहाँ पर क्या है बच्चों 1 है और a आपका कितना आया है 1, b इज -1 सो इट वुड बी -3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस c इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -1। सो आपका जो आंसर हुआ वो हुआ 1 -1 एंड -1 और आई थिंक यही ऑप्शन था, दैट इज द ए ऑप्शन, दैट इज 1 -1 एंड -1। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन ही जेई में और नीट में एमएलटी का क्वेश्चन वो डालते हैं। बहुत वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है किसी भी टीचर का किसी भी एग्जाम में डालने के लिए। सो आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस। आई होप आप इनको क्वेश्चन को करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डाउट सेशन में जरूर मैं आपको इनके बारे में पूछूंगा। सो आई एम पुटिंग द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। आपको क्वेश्चन को उतारना है और उसको प्रैक्टिस करना है और मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा। जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ दे ऑल आर इन योर IIT और इन योर जेई और इन योर नीट, किसी भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, दैट इज क्वेश्चन इज if f, v and t are fundamental units आपको what would be the dimension of mass, what would be the dimension of मास। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज ये क्वेश्चन जो आपको 2014 जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपको तीन चीजें दे दी, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। ये उन्होंने बोला कि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं और ये मास को बट बेसिकली मास को ये बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको बेसिकली मास को इसको इक्वल रख के मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ वी एंड टी। मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया है, आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना है और इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपको एफ वी और टी के में इसका रिलेशन जो है मुझे बताना है। इसके ऑप्शंस हैं ये, -2 and सिर्फ बेसिकली मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, मैं रिलेशन नहीं बना रहा हूँ। तो आपका रिलेशन जो है वो ये बनना चाहिए, चारों में से एक बने। सो और क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही क्वेश्चन है, दैट इज अब हम ले रहे हैं एनर्जी वेलोसिटी। होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम।
fundamental unit. Find the dimension of surface tension. ये सरफेस टेंशन आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाला है, क्योंकि सरफेस टेंशन मुझे लगता नहीं है आप लोगों ने पढ़ा होगा. सरफेस टेंशन इज नथिंग, मैं रिलेशन बता देता हूँ. सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, बट इसका यहाँ पर आपका कोई यूज़ नहीं है. आपको सिर्फ एनर्जी, मास और इसको यूज़ करना है, और आपको आंसर बताना है एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम. बट फोर्स का भी यूज़ होगा, फोर्स का आपको पता ही है. और सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम. तो आप इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी. आपको ये मैं हिंट दे रहा हूँ. और सरफेस टेंशन का मैंने आपको बता दिया है. फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का आपको पता है, लेंथ का आपको पता है. तो मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ बच्चों. यहाँ पर ऑप्शंस हैं इसके ई, -1 and t -2. ये दोनों क्वेश्चन, और जो ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये बेसिकली ऑल इंडिया मेडिकल में आया है. AAPMT 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है. दोनों क्वेश्चन जो हैं बच्चों ये अलग अलग एग्जाम में, जेईई में और मेडिकल में पूछा गया है. सो आई होप आप इन क्वेश्चंस को कर पाए. सिर्फ आपको रिलेशन, बेसिकली आपको ABC की वैल्यू निकालनी है. इसमें भी आपको ABC की वैल्यू निकालनी है, और आपको 4 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है. सो आई होप आप इसे कर पाओगे. ट्राई दिस क्वेश्चन एंड वी विल मीट सून. सो आफ्टर वन थिंग मोर, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस ऑफ मेडिकल ऑल्सो, दैट इज फ्रॉम नीट, जो कि आपको आई होप आप लोग कर पाएँ. 5 क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूँ, ये भी आपने ट्राई करने हैं. ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये आपने थोड़े बहुत जो हमने जितना कुछ भी हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ 1 2, अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे दे ऑल आर इन योर एग्जाम. सो लेट इट बी. इससे आई होप आप वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं, और मैं इसको आपका PDF भी जो आपको इसका मिल जाएगा. सो लेट अस डू दी अदर क्वेश्चंस. लॉकडाउन की वजह से बहुत प्रॉब्लम है बोर्ड का. आई डोंट हैव एनी अदर बोर्ड, सो मुझे यही यूज़ करना पड़ रहा है छोटा बोर्ड. सो होप सो जल्दी हम स्कूल में मिल पाएंगे. सो आई एम डूइंग द क्वेश्चंस और ऑल द क्वेश्चन मेथड. ये जितने भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ बच्चे, ये जेईई एडवांस में पूछे गए क्वेश्चन हैं. आई एम डूइंग सर्च फॉर यू बच्चों. जेईई एडवांस में पूछे गए क्वेश्चन. इससे फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज light year is a unit of, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट इज a speed, distance, mass and time. ऐसा नहीं है, रीजन हो सकता है पता नहीं कौन से ईयर में पूछा हो, बट ये जितने भी क्वेश्चन हम जेईई से उठा के लाए हैं कि कहाँ कहाँ पर सिंपल से सिंपल एंड मुश्किल से मुश्किल. फोर्थ इज दैट इज पार्सेक is a unit of speed, time, angle, and velocity. Distance. Question number 5. Dimensions of gravitational constant. ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. आई थिंक हम एक वीडियो में मैं इसको आपका सोल्यूशन इसका दे भी चुका हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है. सो इसके जो ऑप्शंस दिए हैं डायमेंशंस के लिए, m -1 L3 T2 एंड m -1 L3 T -2 T1.
this one. And this one. And sixth question is your n by t minus 1 are dimensions of power, momentum, or your force. So ये 6 क्वेश्चन जो है बच्चों आपने अटेम्प्ट करते हैं, ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन है जेईई एडवांस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आया होगा. सो ट्राई टू डू योर ओन क्वेश्चन, थोड़ी सी आप हेल्प ले सकते हैं कहीं से भी, और जितना बेसिक रखेंगे, सिंपल रखेंगे चीज़ों को, उतना आपको जल्दी जो क्वेश्चन समझ आएंगे. सो ट्राई योरसेल्फ एंड डू इट फॉर द बेस्ट.